Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So for many days now, there is a lot of discussion about date of certificate on EWS certificate and OBC certificate for SBI Junior Associate. The reason of this confusion is some people are not able to understand importance of date. So I will explain you in simple words why date is relevant and why your old certificate will not be valid. The moment you understand this, you will have full clarity. Now if we look at the reservation in EWS or in case of OBC, NCL, both the reservations are based on income criteria, and income of a person is different for different financial years. Let's take an example. A person is EWS based on income in 2019-20, but there is a possibility the income of this family might have increased in financial year 2020-21. That means between 1st April 2020 to 31st March 2021, income may rise. The moment income rises, this person is no more economically weaker sector candidate, and that's why his or her certificate based on old income does not entitle him for reservation. And that's why, since income of last financial year is concluded on 31st March 2021, so certificate issued from 1st April onwards can only be based on this income. So any certificate issued based on previous income is not a valid certificate as far as a person is seeking the reservation. Same is position for OBC. Any person who is falling under the category of OBC, if the income becomes creamy, he or she is not entitled for reservation. And how to determine that this person is non-creamy or creamy can only be dependent on the income that is calculated up to 31st March of 2021. And that's why there is a income criteria for both these certificates, and that's why fresh certificates issued after 1st April 2021 based on income that is ending 31st March 2021 is required. This is very clear concept. If you are unnecessary getting into mess that no, I will not take this certificate, I will put the old certificate and then my candidature will be upheld, you are in a wrong notion. You are creating problems for yourself. Your entitlement of reservation only comes if you fulfill the income criteria. And income of a person can go up, go down every year. And that's why to seek reservation in any financial year, the preceding financial year income is the sole criteria. And that's why the reservation clause in SBI Junior Associate is very clear. The only problem which people are facing is due to lockdown they are unable to get this certificate. This is an operational problem. But as far as reservation clause is concerned, that will remain as it is, because reservation entitlement will depend on your income in financial year 2020-21. So any certificate that is based on preceding year income may not be valid, and that's why I advise, if you have any confusion, even after such a clear interpretation, send a mail to SBI. Mail address is given in the description. But as far as I am concerned, I am very clear, since this reservation is based on income, any person who does not possess certificate
on based on income of 2020-21, he or she may not get any reservation and his candidature may be at stake. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। EWS और OBC सर्टिफिकेट की डेट को लेके बहुत लोगों में बेचैनी है, कंफ्यूजन है, और उनको ये लगता है कि ये क्या हो गया, पर वो इस बात को नहीं समझना चाह रहे कि ये जो दोनों रिजर्वेशन है ये इनकम पर आधारित रिजर्वेशन है। ये केवल जाति पर आधारित रिजर्वेशन नहीं है, ये इनकम पर आधारित रिजर्वेशन है। और इनकम पर आधारित रिजर्वेशन हमेशा इनकम पर डिपेंड करेगी, और इनकम हर व्यक्ति की बदलती रहती है हर फाइनेंशियल ईयर में। अगर एक व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 7,80,000 है 2019-20 में, तो हो सकता है 20-21 में उसकी इनकम बढ़ के 8,10,000 हो गई हो, और जैसे ही वो इनकम बढ़ जाएगी वो EWS कैटेगरी से या क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएगा। और इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस कैंडिडेट को उस रिजर्वेशन कैटेगरी में कंसिडर करना है, उसको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2021 को, और जो 1 अप्रैल 2020 के बाद की इनकम है, उस फाइनेंशियल इनकम पर आधारित सर्टिफिकेट ही आपको इंटाइटल करेगा इस रिजर्वेशन के लिए। यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट उससे पहले इनकम पर आधारित है तो आपकी इंटाइटलमेंट ही नहीं बनती। जब इंटाइटलमेंट ही नहीं बनती तो आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे। जब आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे और आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आपके कैंडिडेचर का क्या होगा। तो ये जो लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि भाई कोई एफिडेविट से काम चल जाएगा, बाद में किसी और सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, मेरे हिसाब से ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य बिल्कुल क्लियर है। मुझे एक रिजर्वेशन चाहिए तो मेरे को उसके लिए इंटाइटल तो होना पड़ेगा ना। और इंटाइटलमेंट कैसे है EWS की, इंटाइटलमेंट कैसे है OBC NCL की, इनकम पर आधारित। तो यदि 31 मार्च 2021 तक की इनकम पर आधारित कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस सर्टिफिकेट की कोई महत्ता नहीं है। इस बात को आपको समझना है। जो लोग कंफ्यूजन की स्टेज में हैं कि मैंने तो अभी इशू कराया था जनवरी के अंदर, पर वो ये नहीं समझ रहे कि उस पे इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर की है, 2019-20 की है, मगर आपकी इनकम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है 20-21 के अंदर। इसलिए जो भी एम्प्लॉयमेंट देने वाली एजेंसी है वो देखेगी आपकी लेटेस्ट इनकम पर आधारित आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और इसीलिए कल को आपको कोई परेशानी ना हो, उसने स्पष्ट शब्दों के अंदर नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि मुझे इस इनकम पर आधारित इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का सर्टिफिकेट चाहिए। उसने तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि जो चीज़ मेरे पास है किसी तरह वही चल जाए, इसीलिए कंफ्यूजन है। SBI नोटिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मुझे 2020-21 इनकम पर आधारित नया सर्टिफिकेट चाहिए जो 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू हुआ हो। बड़ा स्पष्ट उसने बताया। पर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, SBI को मेल डाल दे, वहां से अपना सर्टिफिकेट के बारे में क्लैरिटी ले ले। पर नुकसान किसका होगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं? जाहिर सी बात है आपका होगा। वो डिपार्टमेंट तो नहीं मानेगा ना आपका सर्टिफिकेट। आपने एग्जाम भी पास कर लिया, अंत तक पहुंच भी गए और उसने आपको अलाउ नहीं किया ज्वाइनिंग के लिए, तो कौन लूज करेगा? आप। ऑलरेडी 55 कैंडिडेट लास्ट ईयर ऐसे हैं SBI जूनियर एसोसिएट बंगाल के अंदर जिनको EWS सर्टिफिकेट प्रॉपर ना सबमिट करने की वजह से ज्वाइन नहीं कराया गया। यानी कि ये कोई थ्योरेटिकल बात है, लोगों ने भुगता है। और उन लोगों से अगर आप बात करते हैं, पूछते हैं, मतलब बंगाल के हैं वो लोग और काफ़ी ग्रुप्स पे होंगे आपके साथ, आपको पता ही है उनके साथ क्या हुआ। तो इसीलिए आपको पहले से आगाह किया जा रहा है ताकि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है
तो उस कैटेगरी में अप्लाई करिए, नहीं है तो जनरल में अप्लाई करिए। ये जरूर है कि इस बार आपको दिक्कत है, लॉकडाउन है, कहीं पर ऑफिस नहीं खुल रहा, कहीं पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वो ठीक है, वो ऑपरेशनल दिक्कत है, पर बैंक तो जो नियम है उससे चलेगा ना। नियम ये कहता है कि किस व्यक्ति को इंटाइटलमेंट होगी रिजर्वेशन की, जो इनकम क्राइटेरिया के अनुसार उसका पात्र होगा। और जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया तो इनकम उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ है? मार्च 21 के अंदर। तो अगर किसी के पास सर्टिफिकेट मार्च 21 से पहले है तो वो इस इनकम पे आधारित है ही नहीं है। मार्च 21 में आपकी क्या इनकम है ये जनवरी में कैसे पता लगेगी? तो इसलिए इस बात को समझें, ये बात गहन समझने की है। आप समझेंगे ठीक है, मैंने जो आपको क्लैरिफिकेशन है ढंग से मैंने दे दिया है। फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा, SBI को मेल डालें, वहाँ से चेक करें, ठीक है ना। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि ये ना हो जाए कि आप पूरी मेहनत भी कर लें, अप्लाई भी कर दें, सिलेक्शन भी हो जाए और बाद में एक छोटे से सर्टिफिकेट की वजह से आपकी नौकरी ना लगे। उस समय जो आपको दुख होगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल।